کے علاوہ دنیا بھر سے بھی کوشچنز ہمارے پاس موجود ہیں. شنگھائی سے، ٹورنٹو سے بھی کوشچنز آئے ہیں. کراچی سے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ڈاکٹر زیب نے پوچھا ہے. ہم سنتے ہیں جی امریکہ کے پاس اس وقت 30 ٹریلین اور 32 ٹریلین کا ان کے اوپر لون ہے. تو اتنا لون ہے وہ کس کا ہے؟ اور دوسرا کیا پھر ان کو اتنے لون کی وجہ سے ڈیفالٹ کا خطرہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے تو وہ تو بالکل صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہمارے اوپر لون ہے اور ہمارے لیے جان پہ عذاب بنا ہوا ہے اس کے مقابلے میں. جی ہاں، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں میں نے ایک دفعہ ایک چھوٹا سا پروگرام سٹی سے سوال میں کیا تھا، جس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ قرضے کس کس ملک نے لیے ہوئے اور کیوں لیے ہوئے اور ان کا کیا حالات ہیں. تو اس میں سچ ہے، یہ ایک زمانے میں لندن اکانومسٹ نے ایک ٹیبل شائع کیا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سارے ملک ہیں جس کے اندر انہوں نے اتنے اتنے قرضے لیے ہوئے. یورپ نے بھی بڑے قرضے لیے ہوئے، امریکہ نے بہت قرضے لیے ہیں. ڈیفالٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، سرمایہ داری نظام کے اندر قرضہ لینا لازم ہے. قرضے کے بغیر سرمایہ داری نظام نہیں چلتا. اچھا، قرضہ لیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے بعد قرضے کے اوپر سود دیتے ہیں اور اپنی پروفٹ بناتے ہیں. یہ سسٹم ہے سرمایہ داری نظام کا کہ آپ بینک سے لون لے لیں، ملک سے لون لے لیں، لوگوں سے لون لے لیں، اس کو اس ایسی چیز میں ڈالیں کہ اگر 100 روپے کا آپ نے لون لیا ہے تو اس کے ساتھ 150 روپے کی آمدن ہو اس قرضے سے، کیونکہ دیٹس the پرپز آف قرضہ. اور پھر اس میں سے آپ نے سود بھی دینی ہے اور اپنی جیب میں پیسے بھی رکھنے ہیں. تو ترقی اس طریقے سے ہوتی ہے. اچھا، اب امریکہ نے بہت سے قرضے لیے ہیں، مگر امریکہ کی ترقی آپ دیکھیں کہ کتنی ہے. امریکہ اپنے قرضے لیتا ہے اور ساری سود دیتا ہے. ڈیفالٹ ہوتی ہے جب آپ قرضہ لیں تو سود نہ دے سکیں، پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اب وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جتنے قرضے لیتے ہیں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے یا اس کو اس طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں اس قرضے کو کہ وہ ان کے پاس انکم اس سے بنتی ہے اور وہ اپنے سود کے پیسے لوگوں کو واپس کرتے ہیں. دوسری چیز، اور یہ سب سے زیادہ قرضہ امریکہ نے لیا ہوا ہے اور وہ کوئی ایشو نہیں ہے ڈیفالٹ کا، کوئی فکر ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بڑے ہیں. قرضے کے پیچھے اثاثے بہت سے جس کو وہ کسی وقت بیچ کے قرضے دور کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بڑی مضبوطی ہے. ایک تو ان کے پاس تیل کے بڑے وسائل ہیں، ان کے بہت تیل ہے ان کے پاس، اور اب شیل گیس ان کے پاس اتنی ہے کہ وہ سارے دنیا کو بھی چاہیں تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ویری بگ ریسورس دیٹ دے ہیو. پاکستان کے پاس کون سی ریسورس جو کہ وہ پلیج کر سکتے ہیں یا جس کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں. دوسری چیز یہ، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، کہ دنیا کے سب سے زیادہ گولڈ ریزروز جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں. اور گولڈ کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے امریکن ڈالر از ٹائڈ ٹو دا گولڈ. یہ جو بریٹن ووڈز کے بعد جو کہ کانفرنس ہوئی تھی جس کے اوپر یہ سارا کچھ بنا، کرنسیز اور ان کی جو پیگ کرنا ہے، تو ڈالر از اے گلوبل کرنسی. ڈالر کے پیچھے گولڈ ہے، ڈالر کے پیچھے گیس ہے، ڈالر کے پیچھے آئل ہے، ڈالر کے پیچھے امریکن ٹیکنالوجی ہے، ڈالر کے پیچھے پینٹاگن ہے. کیا ہے؟ پینٹاگن ہے. The military industrial complex. The military industrial complex. تو اس لیے امریکہ از امریکہ ڈیفالٹ نہیں کرتا. ڈالر از اسٹرانگ، دیٹ مینس فل اسٹاپ. اور سو پاکستان جیسے ملک میں پیچھے ہے ہی کچھ نہیں. ایک ریکارڈ نکلی تھی، وہ بھی فارغ ہو گئی. جج صاحب کے افتخار چودھری صاحب نے اتنا گندا فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. اب حالات یہ ہے کہ ریکارڈ وچ کوڈ ہیو بین اے بگ ایسٹ فار اس، وہ صرف 25% ایسٹ رہ گیا ہے. 75% جو ہے وہ آپ قرضے جو ریکارڈ کے اوپر ڈز لگی ہے آپ کو 6 ارب ڈالر کی انٹرنیشنل کورٹ میں، وہ آپ دیتے دیتے رہ گئے ہیں. اس میں سے آدھا تو وہ لے گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بھی تو اس قسم کے حالات ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی آئل، وی ڈونٹ ہیو اینی ریزروز آف اینی تھنگ. تو آپ کس کو آپ پلیج کریں گے؟ دیکھیے، جب میں قرضہ لینے جاتا ہوں بینک سے تو بینک کہتا ہے اثاثے کون سے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار وہ میرا گھر ہے. وہ کہتے ہیں اچھا کتنے کا؟ میں کہتا ہوں 10 لاکھ کا گھر ہے. وہ کہنے لگے اچھا پھر ایسا ہے 2 لاکھ کا ایسی قرضہ دے دینا، 10 لاکھ کا گھر ساڈے والے کر دے. تو آپ پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان جب پاکستان کے بانڈز فلوٹ ہوتے ہیں دنیا میں تو وہ لون ہی لینے جاتے ہیں نا فرام پرائیویٹ انویسٹرز. تو وہ اسی لیے ڈر ہوتا ہے کہ کل کو پاکستان کے پاس اگر پیسے نہ ہوئے ٹو پے دیئر بلز تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ جنک بانڈز بن جائیں گے. تو یہ ہے، اسی لیے وی ور ان ڈینجر آف ڈیفالٹنگ.
अगर IMF ना आता तो वी वुड हैव डिफॉल्टेड। डिफॉल्ट का मतलब ये हमने अपने बिल्स पे करने बंद कर देने थे। जब बिल्स पे करने और सूद देने बंद कर देते जो लोगों से लिए हुए, तो सारी इंपोर्ट्स बंद हो जानी थी, ठप। आपकी सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, वेदर इट्स ऑयल और वेदर इट्स गैस, वेदर इट्स फूड। अब तो अगले साल तो आप देखिएगा वीट भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस साल तो फार्मर्स ने वीट भी नहीं, वीट की तरफ भी उन्होंने नहीं ज्यादा एकरेज दी। वो पोटैटोज और अनियंस और इधर चले गए, टमाटर की तरफ चले गए। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम गुड रिजर्व प्राइसेस एंड सो ऑन। तो मतलब दिस क्राइसिस इज बिकमिंग डीपर एंड डीपर, अनफॉर्चुनेटली। एंड सो यू कांट कंपेयर, सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डेट कितनी है। डेट इज गुड बट बैड डेट इज बैड। जहाँ बैकअप मौजूद है वहाँ बुरी नहीं है। मुस्तकिल मसला है पाकिस्तान का दहशतगर्दी। अभी तक तो कम अज़ कम यही साबित हुआ है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इस तरह की कार्रवाइयों के बाद भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द किसी बड़े हमले में कामयाब हो जाते हैं सेठी साहब। और ऐसे में जब KP गवर्नमेंट एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है, हम देख रहे हैं एक वाक़या बन्नू में होता है, वो बहुत अफसोसनाक वाक़या, और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफ़िले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और 38 इज़ द काउंट, जो बहुत अफसोसनाक है। अब एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है जिसमें आर्मी चीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने और हमें काम से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद फिर इस नौयत की कार्रवाई। क्या वजूहात समझते हैं आप वाक़यात में इजाफे की? मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है इन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है। बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के जमाने में जनरल फैज हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी ना। वो लोगों को ला के यहाँ बैठा दिया है। इनका ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। वो उल्टा हुआ, उनको जगह मिल गई है, उन्होंने अपनी सेफ हेवन्स बना लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, इन बॉर्डर एरियाज के अंदर, और अब वो अटैक कर रहे हैं। देयर इज नो कंसर्टेड एफर्ट। जैसे पहले किया था, एक ऑपरेशन पूरा हुआ था, तो वो 50,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, मे बी मोर, मे बी 100,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड। तो देन दे क्लीन्ड अप दैट एरिया। तो अब बात ये है कि अब कोई इस किस्म की चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है, तो यही आई है ना कि हम बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उधर से बलोचिस्तान से कोई प्रोटेस्ट आई है कि यार ये कोई तरीका नहीं है, आप पहले भी तो करते रहे हैं। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं, दे आर इन अफगानिस्तान। वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। और वॉर टू अफगानिस्तान इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। तो अब बात यह है कि यू आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना एंड फोकस करना ऑन दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। एक तरफ सेपरेटिज्म टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस द सिक्योरिटी। और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, टू रीजंस। पाकिस्तान इज क्रिटिकल फॉर चाइना बिकॉज ऑफ सिपेक एंड द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। उनके लिए ये गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप यू आर बीइंग टारगेटेड। अब देखिए, जैसे चाइनीज भी तो चाहते हैं ना कि उनके लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में गेट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन देयर ऑफ देयर ओन पीपल। मगर पाकिस्तान कहता है नहीं, हम करेंगे आपकी प्रोटेक्शन। आप एक आध सुपरवाइजर रख सकते हैं हर जगह जहाँ क्लस्टर है चाइनीज का वर्कर्स का, वहां आप एक आध बंदा रख दे जो कि मॉनिटर, मगर आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं आएंगी। चाइनीज सोल्जर्स विल नॉट कम हियर। अब बात यह है कि अगर चाइनीज सोल्जर्स नहीं आएंगे तो दो चीजें, या आप प्रोवाइड करें पाकिस्तानी सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द चाइनीज,
wherever they are, और या आप जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करें। ये दोनों बड़े मुश्किल काम है। और ये वो मुल्क है जहां आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे, एंड डिस्ग्रंटलमेंट है एवरीवेयर। तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट यू नो यू हैव टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है, उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुकमुका करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल ही में चीफ साहब ने ठीक ठाक खड़काया है इंडिया को। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप, दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ वो आपको खड़का रहे हैं। तो मतलब है कि ये कोई तरीका तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, कोर इशू, और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब वो क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका, मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है, उसके टेंटिकल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं वाया द इकोनॉमिक रूट। उसको रोकेगा वो। एक तो डोमेस्टिक चाइना की एंट्री टू अमेरिका, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा ग्लोबली, अब उसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इज क्रिटिकल। वो मैं ये समझता हूं कि चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान इज क्रिटिकल। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन, अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और डिसफंक्शनैलिटी पाकिस्तान स्टेट की 3 एरियाज में हो सकती है। एक ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। तो ये डिसफंक्शनैलिटी के 3 डायमेंशंस हैं। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट दिस, वेरी वरीड, एंड आई थिंक वन ऑफ द एरियाज इज सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हमारी सारी जो तवज्जो है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज इन अ डेडलॉक। देयर नीड्स टू बी अ ब्रेक इन दिस डेडलॉक। द नेशन हैज टू कम टुगेदर to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. और मैं आपको बताऊं, ये notion of dysfunctionality जो है, ये कहाँ से आया है? अब आज बात हो ही रही है तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात कर दूं, ताकि समझ आए कि ये टेररिज्म जो है इज पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, और आप उसको सही तरीके से डील नहीं कर रहे। देखिए, यूक्रेन में जो हो रहा है, अब रशिया की क्या वहां स्ट्रेटजी है? अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूरोपियन स्ट्रेटजी इज कि नेटो पहुंच जाए रशिया के बॉर्डर के ऊपर, और यूक्रेन इज दी बॉर्डर। रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि 40% के करीब यूक्रेन को कब्जा कर लिया जाए और बाकी रहने दिया जाए, और जो रह जाए उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, ताकि वो डिसफंक्शनल जब हो जाएगा यूक्रेन, जो रह जाएगा वो इट कैनॉट एक्ट एज एन आउटपोस्ट ऑफ नेटो। डिसफंक्शनल स्टेट कैनॉट बी अ थ्रेट टू रशिया। तो रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। आई मीन दैट इज माय फियर। और अगर हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास इस वक्त दोस्ती यारी कहीं नहीं रही। अफगानिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, ईरान इज नॉट आवर फ्रेंड, इंडिया इज आवर एनिमी। And by the way, जो जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान कर रहा है, forget about being a friend, it's almost like that of an enemy, because it's supporting your enemies and it's giving them refuge. तो मैं समझता हूँ कि
There has to be some strategic thinking in Islamabad and in Pindi. And I think Khan Sahib has to be part of that. And there has to be a national reconciliation and a national agenda for survival and growth. And तो वो हो नहीं रहा है. Khan Sahib भी तैयार नहीं है, establishment भी तैयार नहीं है, government भी तैयार नहीं है. I think some big things need to happen to protect Pakistan. मगर unfortunately, मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब आज भी सोच समझे इस बात को कि there needs to be a bigger strategy than his own strategy of coming back to power. अगर वो समझे तो मेरा ख्याल है then he can reach out to the establishment and to the government and we can find a way whereby अगले 3 साल में इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, टेररिज्म के ऊपर काबू पा लिया जाए, 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, खान साहब अगर जीतते हैं इलेक्शन जीत के आ जाए और उस वक्त मोडस ऑपरेंडाई जो है एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, a good relationship with the establishment, and Khan Sahib can come back to power, but not on the basis of इंतकामी कार्रवाई and not on the basis of जिस किस्म की वो foreign policy हरकतें कर रहे थे and so on. He needs to be a mature statesman governor now. He can't be a maverick politician जो कि वो पहले थे. नाजुक मोड़ है, नाजुक मामलात हैं और बड़े ख़तरे के इदराक के लिए बड़ी फैसला साजी की ज़रूरत है. इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी अगले महीने बुला ली गई है. आपने कहा जैसे सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तो देखते हैं कि बालिग नज़री का मुज़ाहरा किया जाता है क़यादत की जानिब से इन ख़तरात का इदराक वहाँ मौजूद है या नहीं.